Good morning, dear students. Hope you are enjoying good health and you are enjoying your studies. हम अपना 10th chapter, which is the last chapter, last topic of your this semester, कौन सा? Motion and the measurement of distances. हम ये कर रहे हैं. और last lesson में बच्चों हमने we have discussed in details about the motion. What is motion? When an object is changing its position with the respect to time, समय के साथ वो अपनी जगह बदल रही है. Okay, then we have discussed in details, समझने की कोशिश की थी और मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया. Reason being, there is a no query, there is a no phone call at my number. That means you have understood. अगर अब भी नहीं आया है, you can give me a call. ठीक है? But after this, when I am just finishing this lecture, okay? Okay, we have studied types of motion: rectilinear motion, motion in a straight line, circular motion, motion along a circular path, periodic motion, a motion which repeats itself after a regular interval of time, and then we have studied about rotational motion. लट्टू वाली रोटेशन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस. फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन. यस, we have taken the example of swing machine, we have taken the example of swing machine, अपना cycle, and we have taken pretty well the example of what? Earth. Rotational, circular, as well as periodic after a fixed interval of time. Okay? So then we have gone through what is the story of transport. पहले कैसा था ancient time में, on foot, animal power, then came bullock cart, camel cart, horse cart, like that. Then invention of wheel, bicycle, automobile, steam engine, locomotives, and the jet age that we have studied. So today our topic is distance. Distance and how it is measured. So what is the distance? Let's try to. What is distance? Measurement of distance. Why there is need of standard unit of distance, what is a standard unit, how we measure and all that. This we will discuss today. But before going through, let's try to understand what is the distance itself. Distance क्या है बच्चों? It is the length of space. It is the length of space. ठीक है? कहने का मतलब क्या है? Between two points. ये point है, ये point है. इसकी जो length है, point to point, or it is the length of space between two places. Suppose if I ask you, what is the distance between your city and Delhi? All of you, I think all of you will raise your hand. Sir, और एक से पूछने से पहले सभी चिल्लाएंगे 215 सर. क्यों? आपको मालूम है दिल्ली हमारे इस फतेहाबाद शहर में से जो हरियाणा में कितना दूर है? सिरसा 42 किलोमीटर, हिसार 48 किलोमीटर. सो व्हाट इज दिस? इट इज स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस. एंड व्हाट इज दिस? स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो व्हाट इज डिस्टेंस? Space or the length of space between two points or two places is called distance. जब distance हमने मालूम कर लिया what is distance, जो हमने ये बोला 215 किलोमीटर is Delhi, 48 किलोमीटर is Hisar, और from Delhi to Agra it is what? 200 kilometers. How we say? How we measure it? How the measurement of distance is done. But before going through how measurement
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या भला है? व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ये साइंटिफिक भाषा में है. मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. स्टैंडर्ड यूनिट ये साइंटिफिक आज की भाषा में है. पहले क्या था बच्चों? आप हंसोगे. अभी भी क्या है, कुछ गांव के अंदर उनके पास मीटर रोड नहीं होती है. हम अगर जाते हैं मार्केट में, इफ आई वांट टू परचेज अपना ए क्लॉथ फॉर माई ट्राउजर्स, मेरी पैंट के लिए मेरा कपड़ा चाहिए, मैं मार्केट में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? प्लीज गिव मी 1.35 सेंटीमीटर अपना मीटर्स ऑफ क्लॉथ, या 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर. आप लेडीज अपने सूट के लिए कपड़ा लेती हैं, वो क्या लेंगी? 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द साइज. और वो लंबा डालना है, झबला डालना है, कैसा डालना है, प्लाजो डालना है, आजकल चलते हैं बच्चों. ओके, सो व्हाट दैट शॉपकीपर इज डूइंग, ही इज हैविंग ए स्टैंडर्ड यूनिट मीटर रॉड. वो मीटर रॉड से अपने कपड़े को कंपेयर कर रहा है और आपको दे रहा है. ठीक है. पहले क्या था बच्चों? आज भी क्या है बच्चों? गांव के अंदर कपड़ा बेचने जाते हैं फेरी वाले, उनके पास, अब तो खैर जमाना चेंज हो गया. पहले क्या होता था बच्चों? और आपको मालूम है बच्चों, लेडीज की क्या होती है? मोल भाव करने की आदत होती है. उसने 10 रुपए बताया, वो 5 रुपए देना चाहेंगी, और वो क्या करते थे? कपड़े को पकड़ के 2, 3, 4, अब जिसने तो मोल भाव कम किया उसके लिए 1 यहां है और 2 भी यहां है. जिसने मोल भाव किया उसका 1 यहां, 2 यहां, 3 भी यहां. तो क्या हुआ बच्चों? रिजल्टेंट, उसका कोई लॉस नहीं है. लॉस किसका है? उसने 5 पहले मीटर, जैसे 5 मीटर मांगा. इनफैक्ट व्हाट शी गॉट 3.5 और 4 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर्स. क्यों? उसने स्टैंडर्ड यूनिट से तो मेजर नहीं किया ना. अगर स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करता, मीटर रॉड से मेजर करता, जो आजकल हम मार्केट में देखते हैं, तो उसको जेब से देना पड़ता बेचने वाले. तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? वो क्या है बच्चों? क्यूबिक, 4 आर्म की लेंथ, दिस यहां से लेके 4 आर्म, फुट, 1 कदम चल रही है. कदम. अब भी क्या है बच्चों? पुराने जमाने में जो डिस्टेंसेस मापे जाते थे बच्चों, आज भी हम देखते हैं गांव के अंदर, कभी हमारे बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं, अरे यार भाई को क्या कहते हैं? मुश्तरका रास्ता है, साझा रास्ता है. कितना भाई, कितना चौड़ाई है उसकी? 5 करम. व्हाट इज दैट 5 करम? 5 करम, 5 स्टेप्स, अप्रोक्सीमेटली 16 फीट होता है बच्चों, एवरेज उसका ले. तो कहने का मतलब क्या? बारिश होती थी. अब भी अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछते हैं आज कितनी की बारिश हुई है नाना जी, वो क्या बोलते हैं? 2 आंगल, 3 आंगल, 1 आंगल. व्हाट इज दैट? कैन यू जज? अब क्या है बच्चों? दादाजी की आंगुल, दादाजी बड़े हैं, उनकी जो ये डिस्टेंस है वो ज्यादा है. आप छोटे हो, आपका डिस्टेंस तो 3 आंगल का इतना ही बनेगा. सो मेजरमेंट इज ऑलवेज ए comparison or a comparing an object with a standard unit so that it is acceptable everywhere, in every corner of the city, in every corner of the world. There should not be any ambiguity. International level,
रीजन भी, पहले क्या था बच्चों, ट्रेड क्या होती थी, वो एक राजा के उसमें टेरिटरी के अंदर होती थी, फिर आपस में राजाओं की होनी शुरू हुई, फिर आपस में देशों की होनी शुरू हुई। तो अब क्या है बच्चों, अब क्या है, अगर आपकी मेजरमेंट दूसरे देश के अंदर जाके मेल नहीं खाती है, इफ द मेजरमेंट इज नॉट प्रॉपर, इफ वी आर यूजिंग सब स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स, तो क्या होगा, योर कंसाइनमेंट जो आपने गुड्स भेजी हैं, दे विल बी रिजेक्टेड बाय दैट कंट्री, दे विल कम बैक। सो द नीड वॉज फेल्ट, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, नीड वॉज फेल्ट, क्योंकि पहले क्या था, हैंड स्पैन, हैंड स्पैन, ये हैंड स्पैन। अब हैंड स्पैन बच्चों, मेरा हैंड स्पैन अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस का है, ओके, 9 इंचेस, 9 इंचेस। अगर मैं आप में से किसी को बुलाऊं, आपका हैंड स्पैन कितना होगा, 7.5, 7, some might be having 6 also, जिसका हाथ छोटा है, तो कैन यू कंपेयर, कंपेयर is a process of comparing, can you measure by the process of comparison with hand span, mist, muthi? No, you cannot compare. So that is why need for standard unit was felt, because hand span, cubit, yes, cubit क्या है बच्चों, cubit is the distance between the forearm and this, क्या बोलते हैं इसको, कोनी, आपके हाथ और कोहनी के अंदर जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट। अब क्या बच्चों, एंशियंट, पुराने जमाने में बच्चों, क्यूबिट वाज ए व्हाट, एक्सेप्टेड यूनिट। इजिप्ट का जो राजा होता था, उसकी जो आर्म लेंथ होती थी उसको क्यूबिट मानते थे। अब बाद में वो भी डिस्कार्ड हो गया, क्यों, राजा है, कभी तो मरेगा। हमने पढ़ा ना चैप्टर नंबर, उसके अंदर वो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटेट में, लिविंग थिंग्स हैव ए व्हाट, स्पेसिफिक टाइम, लाइफ स्पैन। मरने के बाद जो दूसरा राजा आता है, उसकी हाइट उससे भी बड़ी हो सकती है, या वो नाटे कद का भी हो सकता है, उसका हैंड स्पैन यहां से यहां नहीं होगा, इतना ही होगा। तो सारी गड़बड़ हो गई, तो सारी गड़बड़ हो गई। दैट इज वाई दीज व्हाट, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुटस्टेप, फिस्ट, मुट्ठी, उंगल, वो क्या है, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, so they were not acceptable. Or Germany was the country which accepted, which felt the need first, कि भैया there should be standard unit of measurement. Okay, so what is a standard unit of measurement? A unit which does not change from person to person and place to place. इंडिया के अपने हैं, पाकिस्तान के अपने हैं, मिस्र के अपने हैं, इंग्लैंड के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने, नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। टिच, सब जगह स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उसे हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर, वहां कहीं भी जाओ मार्केट के अंदर, वो क्या बच्चों, ये मीटर भी हमने कब एक्सेप्ट किया है, 60s में, 70s में एक्सेप्ट किया। 60 के बाद वो 70s आ गया, कहने का मतलब आई थिंक इट वाज 61 और 62, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड। क्यों, हमारे ऊपर बच्चों कौन रूल करते थे, इंग्लिश पीपल। हमारे यहां इंग्लैंड की चीजें थोपी हुई थी,
इंग्लैंड में, यूके में आज भी बच्चों क्या है, सेंटीमीटर मीटर यूज नहीं होता। वहां पे क्या यूज होता है, फीट, यार्ड। हमारे भी यहां गज और फुट चलते थे, गज और फुट चलते थे, बट we have also shifted to what, standard unit of measurement, that is what, this meter. Okay, चलिए, so standard unit, a unit which does not change from person to person and place to place. अब क्या बच्चों, कोई भी यूनिट है, इट इज हैविंग टू वेक्टर क्वांटिटीज, उसमें दो होंगी, वन इज द नंबर, अदर इज द यूनिट। जैसे मैं बोलता हूं, आपके साथ मामा जाती है, सूट लेंथ लेती है 5 मीटर। अब 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, कितना, मीटर क्या है, व्हाट इज मीटर, इट इज द यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट। सो while measuring a standard unit, okay, yes, there are two factors always there, what is number and the other is unit, other is unit. तो जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करते वक्त हमेशा दो चीजें मेजरमेंट में आएंगी, one is the magnitude, which is the number, and second is the unit, meters, centimeters, millimeters, kilometers, gram, kilogram, ton, metric ton, depending upon हमने किस चीज को मेजर करना है, कम चीज को मेजर करना है, ज्यादा चीज को मेजर करना है। So depending upon our need, we are using prefix, suffix लगाते हैं। प्रीफिक्स तो नहीं, सफिक्स लगता है, आगे लगता है, बाद में नहीं लगता, आगे लगता है, ठीक है। सॉरी, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है प्रीफिक्स सफिक्स का। यस, प्रीफिक्स आएगा, सेंटीमीटर, पहले हमारा मैग्नीट्यूड आता है, सफिक्स में नंबर, फिर आता है आपका यूनिट। ओके, प्रीफिक्स आएगा 2 मीटर्स, 200 सेंटीमीटर, 2000 मिलीमीटर, कन्वर्शन है। ओके, चलिए। सो अब क्या है, तो जब आप मेजर करते हैं तो इट डिपेंड्स हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग टू मेजर ए लॉन्गर डिस्टेंस और ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम बच्चों छोटा डिस्टेंस हमने सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो मैथ का, आपके क्या बोलते हो, ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हो, उसके के अंदर क्या होता है बच्चों, ये स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर स्केल, नीचे कितने होते हैं, 6 इंचेस। आपको क्या बोलते हैं, ड्राई लाइन ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हो, ठीक है, you draw a line this, okay, so it is a bit more, yes, so 8 सेंटीमीटर, ये 4.5 है, ये 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, you will be using the scale or the unit depending upon the distance or the length to be measured. छोटी है तो you will be using centimeters, उससे भी छोटी है मिलीमीटर्स, बड़ी है जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं मीटर्स, और उससे भी अगर बड़ा है जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, किलोमीटर्स। 8th में हम और भी पढ़ेंगे, लाइट ईयर, वो भी एक डिस्टेंस है। देन वी विल स्टडी द चैप्टर ऑफ सोलर सिस्टम। सो
डिपेंडिंग अपॉन। उसी तरह बच्चों क्या है, नॉर्मली इन क्लास यू आर यूजिंग दिस स्केल, और जो आर्किटेक्ट्स होते हैं कुछ होते हैं दे आर यूजिंग दिस इज अ 2 फीट स्केल, 1 फीट स्केल, 30 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। रीजन क्या है बच्चों? अब क्या है, मैंने बताया आपको कि वी वर यूजिंग व्हाट, इंग्लिश पीपल हम पर राज करते थे 1962 से। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा एग्जैक्ट ईयर बच्चों। हम भी क्या थे बच्चों, वी वर यूजिंग व्हाट, फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स, फुट, पाउंड, सेकेंड्स। अब हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। आप उस जमाने में पैदा हुए हो जिस जमाने में डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर में मेजर किया जाता है, और आपका जो वेट है वो ग्राम्स किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और ये सेकेंड्स तो इंटरनेशनल यूनिट है, शुरू से ही ये पल, पुराने जमाने का ये सेकेंड्स, आवर्स एंड डेज इसमें काउंट होता है। ओके, हमारे यहां भी बच्चों फुट मतलब 12 इंचेस एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये जो स्केल्स होते हैं ना बच्चों, इनके पीछे कन्वर्शन टेबल भी दी होती है, ये सारी ये लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ा ब्राइटनेस करके देखेंगे लिखा हुआ है, ठीक है, कन्वर्शन टेबल, इंच इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर, दिस एंड दैट, वो सब कन्वर्शन टेबल इसमें दी हुई है, डिफरेंट कन्वर्शन टेबल। सो इफ यू आर गिवन ए व्हाट डिस्टेंस ऑफ व्हाट, दिस इज ए 2 feet 24 inches, so how many centimeter? इसके पीछे स्केल है, 1 inch is equal to 2.54 लिखा है मैंने, तो 24 multiplied by 2.54 is equal to 60.96। और आपको मैं दिखाता हूं बच्चों, ये देखिए, आप देखिए ये 2 feet 61 सेंटीमीटर है, 2 feet 24 inches 61 स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इन इंग्लैंड, यूके, अभी भी यूनाइटेड किंगडम में फुट पाउंड्स, वहां पे जो वेट है पाउंड्स के हिसाब से चलता है, औंस, जैसे हमारे यहां ग्राम थे उनके आगे औंस होते हैं, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स। फीट, वहां अभी भी क्या है बच्चों, जो स्पीड काउंट होती है माइल्स में। क्यों? हमारे यहां क्या है बच्चों, 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वहां क्या है बच्चों, फीट, 220 फीट इज इक्वल टू 1 फरलांग। पूछना दादाजी से, नाना जी से, बताएंगे कि 1 फरलांग क्या है। और 8 फरलांग इज इक्वल टू क्या कहते हैं ना, 220 यार्ड्स, नॉट फीट, यार्ड्स। ओके, 8 furlong is equal to 1 mile, not kilo mile. 1 mile is approximately 1.3 something kilometers. Okay, so 220 yards multiplied by 8 is equal to 1760 yards. 1760 yards is equal to 1 mile. और 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ऑटोमेटिकली। और जो बच्चों मीटर होता है, मीटर 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 feet, बट 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो उसमें 39 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होते हैं, 39 पॉइंट। तो इसमें कितने होंगे, अगर हम आम भाषा में यूज करते हैं तो 96 नो यस 30 यस 90 बट इट इज 100 सेंटीमीटर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यार्ड एंड, बट कन्वर्शन टेबल इज देयर, यू कैन इजिली कन्वर्ट बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ 1 feet, 1 inch, दिस एंड दैट। ओके, सो कहने का मतलब क्या, अब तक हमें यह समझ आ गई व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स,
why the need was felt to have a standard unit of measurement, ताकि it is acceptable everywhere. It does not differ from person to person and place to place. Now, how to measure? अब measure करना हमें, we have to keep in mind 3 particular points. measure करते वक्त हमें 3 बातों का ध्यान रखना है. कौन कौन सी 3 बातें? प्रॉपर प्लेसमेंट. क्या है बच्चों, सपोज आपने इस शीट की लेंथ को पैमाइश करनी. ओके, व्हेन यू आर प्लेसिंग द स्केल, इट शुड बी पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट. यानी कि ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, एंड इट शुड नॉट बी लाइक दिस ऑल्सो. It should be what? Parallel. Like this. Then it will be correctly measured. अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, then also the length is more, it is showing more. नीचे ले जाते हैं, then also it is showing the length more. ये यहां से यहां तक. Because वो एक ट्रांसवर्स लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड पैरेलल लाइन होनी चाहिए with respect to its base. उसको हम मेजर करेंगे. तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, जो आपका प्लेसमेंट ऑफ स्केल है, दैट शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, आई मस्ट बी वर्टिकली प्लेस्ड. अब जैसे सपोज हमने इसको पैमाइश करना है, इट शुड बी वर्टिकली, यानी आपके आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए वर्टिकली. अब कितना इसमें 25 सेंटीमीटर. अगर थोड़ा आप ब्राइटनेस करके देखोगे, अगर बच्चों हम यहां से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, तो ये कम नजर आता है. अगर हमारी आंख ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमें लंबा नजर आएगा. ये इसकी जो टिप है इस पेपर की, वो 25 से बड़ी हुई नजर आएगी. नीचे से देखेंगे तो वो कम नजर आएगा. दैट मीन्स टू हैव ए एग्जैक्ट मेजरमेंट, योर आई शुड बी वर्टिकली प्लेस्ड एट द रीडिंग. जो आपने रीड करना है उस पर वर्टिकली आपकी आईज होनी चाहिए, सीधी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, 90 डिग्री का, क्या 180 डिग्री का एंगल, 180 degree angle between your eyes and the point to be noted. Now, third thing which we commonly observe, क्या होता है बच्चों, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हो उसके अंदर जो स्केल होती है, मोस्टली समटाइम्स वो क्या होती है, उसका जो एज होता है ये थोड़ा गोल है. स्टार्टिंग पॉइंट टूट जाता है, हम उसी से ही कंपेयर करते रहते हैं, यानी कि उसी को यूज करते रहते हैं. सपोज अगर वो ब्लंट हो गया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0.0 आपका नहीं है, टूटा हुआ है, व्हाट यू विल डू? You will measure the distance starting from 1 and noting the, yes, it is 16. Now what you will do? कहां से शुरू किया आपने? 1 सेंटीमीटर से. रीडिंग क्या आपकी? 16 सेंटीमीटर. डिडक्ट 1 from 16. 15 centimeter is the length of this line. Okay. कहने का मतलब क्या है? If the starting point is not readable properly, broken है, dismantled है, you can start from either 1, 2 or 3. और जिस भी आप पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो, जो आपकी लेंथ आई है उसमें से उसको आप डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे. दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट.
तो ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड ऑब्जेक्ट और ए कर्व्ड लाइन। अब क्या है बच्चों, जैसे हम जाते हैं प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर यूनिट क्यों होना चाहिए, क्या होगा बच्चों, अब वो जब हम अपनी शर्ट सिलवाने जाते हैं या पैंट सिलवाने जाते हैं, मेजरिंग टेप से हमारा वो लेता है, वो चेस्ट का, गले का, कंधों का साइज, लेंथ ऑफ द आर्म एंड ऑल दैट, वो क्या है स्टैंडर्ड यूनिट है, उससे लेता है वो, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अगर स्टैंडर्ड यूनिट से वो नहीं ले रहा है तो क्या होगा, जब वो कपड़े सिलेंगे, कटेंगे, सिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, वो फिट नहीं आएंगे आपके। वो भी एक रीजन है, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्या है बच्चों, अब इस स्केल से तो हम बच्चों इसको मेजर कर नहीं सकते, कैसे बेंड करेंगे इसको, आपका जो मेजरिंग टेप है उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन वी रिक्वायर 3 थिंग्स। व्हाट वी रिक्वायर 3 थिंग्स। कैसे? One is thread, ink for marking and scale। ये 3 चीजें चाहिए हमें, 3 चीजें चाहिए, थ्रेड, इंक एंड स्केल। ठीक है, स्केल मतलब यू कैन हैव दिस 2 feet scale, you can have a meter rod, anything, okay। You can even mark with this ballpoint pen also, मैंने इसको कर लिया है। So how to measure, what we will do, हमारे पास ये थ्रेड है बच्चों, थ्रेड है, आप क्या करेंगे, टाई ए नॉट, इस पे गांठ मारनी है हमें, ये हमने गांठ मार ली इसके ऊपर, ठीक है, नजर नहीं आएगी आपको, बहुत छोटी सी है। तो जब आप कर रहे हैं, आपको इसमें स्क्रीन पे यूट्यूब में नजर नहीं आएगी, छोटा है बहुत, बट व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिकली, जब आप घर में करके देखना तो आपको ये गांठ लगी हुई नजर आएगी, दूर से नजर आएगी, धागा कुछ मोटा है, ठीक है। आपने क्या करना है बच्चों, प्लेस दिस नॉट एट द स्टार्टिंग एंड ऑफ दिस, जैसे हमने ये रख लिया इसको, गांठ को। नाउ स्लोली जैसे जैसे ये आपकी कर्व्ड लाइन चल रही है, पीछे से अंगूठा रख के दबाते हुए चलते जाइए, इसके ऊपर चलते जाइए, थोड़ा थोड़ा, जहां कर्व है थोड़ा धीरे चलिए ताकि प्रॉपर लेंथ आए, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको बेंड भी कर सकते हो, पुश करते हो तो उसकी बुलाई पे आ जाती है पूरी, ठीक है। चलिए, सपोज हमने इसको यहां तक मेजर करते हैं, अब ये हमने पॉइंट ले लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल मार्क विथ इंक, यू विल मार्क विथ इंक। आप ये देखोगे बच्चों, आपको क्लियर नजर आ रहा है इंक वाला पॉइंट। अब क्या बच्चों, हम इस धागे को स्ट्रेट करते हैं, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। नाउ यू कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल। हम सेंटीमीटर वाली साइड में ले रहे हैं, ये मैंने नॉट ले ली, कहां गया इंक वाला, अब थोड़ा नीचे है भाई, मैं ऊपर देख रहा हूं। यस, इट इज 46
6 यानी कि 46 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर बच्चों हमने यहां तक फरमाइश की थी, अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तो ये कितना है 39 सेंटीमीटर, बट सिंस इट इज ए कर्व, जब आपसे आप सीधा करोगे धागे को तो इट विल गिविंग यू द एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सारा कर सकते हो जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि आगे टाइम बच्चों शायद मेरे ख्याल में काफी हो गया। लेट्स ट्राई टू वाइंड अप द टॉपिक। ओके, so this is how to measure the what length of a curved line। क्या करना है आपको? You require 3 things: thread, ink and scale. First of all, tie a knot. Keep the knot at the starting point. Slowly go on moving along the curved line till you reach the end of the curved line. So at that particular point, with the help of ink or a ballpoint pen, put a mark on the thread. Now stretch or straighten the thread and measure it with the meter rod or the measuring scale. That will give you the length of a curved line. ठीक है, एक बच्चों बीच में आपका रह गया, लेट्स ट्राई टू कवर दैट आल्सो। अब क्या है बच्चों, छोटी लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? छोटा स्केल यूज करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम बच्चों क्या है, सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसा लें, मिलीमीटर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर लिखते हैं, दिस इज 100 ऑफ मीटर। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हम मीटर लेते हैं, इट इज व्हाट 1000 पार्ट ऑफ किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter। और अगर आपके पास बच्चों कोई सम आता है टू कन्वर्ट, जैसे सपोज अगर आपको ये सम दिया जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड द स्कूल इज 2.6 किलोमीटर, कन्वर्ट इट इनटू meters. So 2.6 multiplied by 1000 कितना आ जाएगा? is equal to 2600 meters। और अगर आपको ये दिया जाता है that your school is 3700 meters from your residence, how many kilometers? Divide it with 1000। 1 2 3 1 2 3 3 के बाद पॉइंट 3.70 किलोमीटर। लाइक दिस, एक दो सम होंगे आपके, उसमें आप कर सकते हो। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज ए मेजरमेंट, हाउ मेजरमेंट इज डन, व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, What is a standard unit and what are the different standard units? मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ पे क्या है एक्सेप्टेबल, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम। सेंटीमीटर मीन्स मीटर वाला, मीटर एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ग्राम्स, किलोग्राम्स, क्विंटल, लाइक दिस, एंड सेकेंड्स। अर्लियर हम कौन सा यूज कर रहे थे? फुट, पाउंड्स एंड सेकेंड, इंग्लिश पीपल वाला। इंग्लैंड में अभी भी वो चल रहा है। बाकी मेरे ख्याल में बच्चों आज की तारीख में इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इट इज CGS सिस्टम। ओके, सो एंजॉय योर स्टडी। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों, इन केस एनीबॉडी इज नॉट हैविंग एनी लेसन
he can contact me at my personal number. I will be sending him the lesson on his personal number, chapter number 1 to 10. 1 to 10. इन्हें आप सुनिए, समझिए. क्वेश्चन इज आल्सो आई हैव गिवन. साइंस की आपको ग्रुप में मिल जाएंगी. अगर आपने लेट ज्वाइन किया, यू कैन आस्क, यू कैन रिक्वेस्ट ज्योति मैम, शी विल बी सेंडिंग यू. ओके, ट्राई टू गिव द आंसर्स. एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी. आई विल बी फ्री. आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, सो एंजॉय योर स्टडी. अब हम बच्चों के एमसीक्यू वर्कशीट के द्वारा मिलते रहेंगे फ्यू डेज. थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, आपको भी एंजॉय, डिफरेंट वे में आपकी स्टडी हो जाएगी. ओके, एंजॉय योर स्टडी. बाय.